السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات مہک خانم قسط نمبر 7۔ جی یہ ہمارا ناول رک گیا تھا رائٹر کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کی جو پچھلے ایک ساتھ ہیں وہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں اسی نام کے حوالے سے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے پلے لسٹ کا۔ باقی اس سے آگے ہم لوگ اب پبلش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اب یہ روز کی بنیادوں پر ہوگا، تو تقریباً روز کی بنیادوں پر یا ہفتے میں 2 دفعہ، کیونکہ اب یہ ناول مکمل میرے پاس آ چکا ہے۔ تو چلیں جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ونی بیس ناول۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی چند لمحوں میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس کی سانسوں کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے خراٹوں کی مدھم آواز کمرے کی خاموش فضا میں رس گھول رہی تھی۔ باران جو ابھی واش روم سے نکل کر آرام دہ لباس میں ملبوس تھا، ہلکی نمی سے بھری ہوئی زلفوں کو سمیٹتا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یہ آواز اس کے قدم روک گئی۔ گردن موڑ کر اس نے حیرت سے زارا کو دیکھا۔ اب تک کی تمام راتیں یاد آئی۔ اتنے دنوں سے وہ یہیں تھی، مگر اس نے کبھی زارا کو خراٹے لیتے نہیں سنا تھا، نہ دیکھا۔ تو کیا آج کوئی خاص بات تھی، یا شاید اس نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، کیونکہ زارا ہمیشہ اس کے سونے کے بعد سوتی تھی، چپ چاپ دبے پاؤں، جیسے اس کی نیند بھی باران کی آرام کی محتاج ہو۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بے اختیار سا مسکرایا، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور بیڈ کی جانب بڑھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اب زارا کے لبوں سے ادا ہوا ایک لفظ اسی کے دماغ میں گونج رہا تھا، سائیں۔ کیا عجب تھا اس لفظ میں، کتنی نرمی، کیسا مان، کیسی انسیت چھپی تھی اس ایک لفظ میں، جیسے وہ صرف ایک مخاطب نہیں بلکہ ایک تعلق کی ترجمانی ہو۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے بے ساختہ کھینچ کر ایک ہلکی سی نرم سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، ایک ایسی مسکراہٹ جو بے خبری میں دل پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ کب نیند نے اس کی پلکوں کو بوجھل کیا، کب خوابوں نے اسے آغوش میں لیا، اسے علم نہ ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ سونے سے پہلے وہ روز کی طرح آج بھی نماز فجر کے لیے الارم لگانا نہیں بھولا تھا۔ گویا رات کی تھکن میں بھی وہ صبح عبادت سے غافل نہ تھا۔ شامی راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر خاموشی کی دبیش چادر ہر سمت تنی ہوئی تھی، سوائے ایک آواز کے، ایک زوردار غصے میں لپٹی مردانہ آواز جس نے راہداری کے سکوت کو چیر ڈالا۔ شامیر کے قدم وہیں کے وہیں ٹھہر گئے۔ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے گرد و نواح میں نظریں دہرائیں۔ راستے کے دونوں جانب بنے کمروں کے دروازے بند اور روشنی سے خالی تھے، سوائے ایک کمرے کے، وہ کمرہ جس کے نیچے سے ہلکی پیلی روشنی چھن چھن کر راہداری میں سے گر رہی تھی۔ اسی کمرے میں سے وہ آواز آئی تھی۔ وہ کمرہ جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی، شامیر کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ یہ آواز یہ کسی مرد کی تھی اور اس کی سماعتیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ شکوک کی خفیف سی لکیر اس کے ماتھے پر ابھری۔ قدم غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ اس روشن دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ کچھ پل ٹھٹک گیا۔ ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا جیسے دستک دینا چاہتا ہو، لیکن پھر لمحہ بھر کو رک گیا۔ وہ کشمکش میں تھا۔ یہ ایک کمرہ حرم کا تھا، اس کی محبت کا، اس وجود کا جس کا تقدس وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت وہ خزانہ ہے جو حقیقت کے سمندر میں غرق ہو جائے تو بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اسے اس وقت یہاں اس کے کمرے کے دروازے کے پاس دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بھی حرم کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں ایک حرف بھی بولے۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے نیچے گر گیا، مگر دل بے چین تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، کچھ غیر معمولی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ سوئیاں 3 کا ہنسا پار کر چکی تھی۔ رات کی نیند سب کی آنکھوں میں بسی ہونی چاہیے تھی، مگر یہ روشنی، یہ آواز، اس کے دل کی دھڑکن، سب کچھ الٹ تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھا کہ دفتن دروازہ کھل گیا۔ روشنی کا ایک دھار سا بارش کی طرح راہداری پر برس پڑا۔ جبران کے چہرے پر چھائے غصے اور تشویش کے آثار لمحہ لمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، جبڑے کی سختی اور انگلیوں کی کپکپاہٹ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ خوف زدہ ہے، بے بس ہے، مگر اسے یہ کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنی۔ حرم نے بمشکل ہاتھ اٹھاتے الماری کے نچلے پورشن کی جانب اشارہ کیا، اور جبران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لپکا۔ وہ جگہ جس کی موجودگی بھی اسے شاید یاد نہ تھی، آج وہاں سے زندگی کشید کرنی تھی۔ اس نے دوائیوں کا باکس نکالا، جلدی میں ڈھکن کھولا اور پہلا ہاتھ انہیلر کی جانب بڑھایا۔ جبران نے وہ پمپ حرم کے لبوں سے لگا کر پریس کیا تو وہ خود بخود آگے جھک گئی، جیسے سانس واپس لینے کی کوشش میں تھی، جیسے زندگی کے تاریک کنارے سے واپس کھینچی جا رہی۔ حرم نے پمپ خود سنبھالتے ہوئے دوسری بار سانس لیا، اور دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں روانی لوٹنے لگی۔
जिब्रान ने फ़ौरन दवा निकाल कर इसके हाथ में दी और साथ में पानी का गिलास थमाया। हरम ने खामोशी से दवाई निगलते वक्त उसके गले की हरकत और चेहरे की थकन वाज़ेह महसूस हो रही थी। जिब्रान ने उसी बॉक्स से रुई निकालकर हरम के नाक से बहते खून को नरमी से साफ किया। खून तो रुक चुका था, लेकिन वो सुर्खी उसके सफ़ेद चेहरे पर एक बेरहम याद की मानद पड़ी रही थी। बाज़ कर्ब चेहरे की रौनक छीन लिया करते हैं। ये एक ऐसी गहरी हकीकत है कि बाज़ दुख और कर्ब इंसान के चेहरे की रौनक को मांद कर देते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दिल की गहराइयों में छुपे दर्द का असर चेहरे पर नुमाया होता है। ऐसे में इंसान की मुस्कुराहट भी गम की गहराइयों में डूबी नजर आती है। लेकिन ये भी सच है कि यही कर्ब इंसान को मजबूत बनाता है। ये दुख और तकलीफ इंसान की शख्सियत को निखारते हैं और इसे ज़िंदगी की खुश हकीकतों का अदराक देते हैं। चेहरे की मांद पड़ती रौनक दरअसल दिल की गहराइयों में छुपे जज्बों की अक्कासी करती है। रुई को डस्टबिन में फेंकने से पहले जिब्रान ने इस पर एक नज़र डाली, जैसे इस लम्हे को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता। उसने फिर पलटकर हरम को देखा, जो नींवा आंखों से सोफे पर टेक लगाए बैठी थी। उसके पलकों के किनारे अब भी हल्की नमक चमक रही थी और चेहरे पर सर्दी छा चुकी थी, जैसे दिन के बाद शाम और शाम के बाद रात उतर आती है। जिब्रान ने गहरा सांस लिया। वो जो कदमों से वॉशरूम की जानिब गया ताकि हाथ धो सके, शायद थोड़ा खुद को भी संभाल सके। वापस लौटा तो बदस्तूर हरम सोफे पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें अब दरवाजे को तक रही थी, जैसे किसी गैर मुर्रई शय को महसूस कर रही हो। जिब्रान, दरवाजे के बाहर देखो, वहाँ कोई है। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लर्जिश अब नहीं थी, जैसे वो सच में कुछ महसूस कर चुकी हो। जिब्रान की नज़रें एकदम दरवाजे की तरफ उठी। नीचे से हल्की सी रोशनी की झलक में एक साया सा लरज रहा था, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, खामोशी से छुपकर सुनता हो। इसकी पेशानी पे बल पड़ गए। वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुका और पलटकर हरम की तरफ देखा। हरम ने खामोश इशारे से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। जिब्रान ने उसकी बात की तायद अपने तासुरात से की, फिर दरवाजे की जानिब रुख करते अपने बालों में हाथ फेरा, चेहरे की सख्ती संभाली और दरवाजे का हैंडल आहिस्तगी से घुमाया। जिब्रान, तुम यहाँ? शामिर की हैरत उसके लहजे में पूरी शिद्दत से झलक रही थी, जैसे गैर मुतवक्का मंजर उसकी सोचों को उलझा गया हो। यही सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ शाह, कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जिब्रान की आवाज़ में नरमी कब संजीदगी ज़्यादा थी। वो निगाहें उठाकर शामिर को ठहरे हुए अंदाज में देख रहा था। मैं अभी डेरे से वापस आया था, अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ साफ थी, जैसे किसी मर्द की। मैंने राहदारी में निगाहें दौड़ाई। सब कमरों की बत्तियां बुझी थीं। बस यही कमरा रोशन था, इसलिए रुक गया। शामिर ने सांस बहाल करते वजाहत दी, जैसे पहले ही जानता हो कि जिब्रान इसे मशकूक निगाहों से देखेगा। ये अगर वो आवाज़ मर्द की ना होती तो यकीन करो मैं इस वक्त यहाँ कभी ना खड़ा था। जिब्रान की नज़रें उसकी आंखों में सच खोज रही थी। लम्हे भर बाद उसके चेहरे के तासुरात नरम पड़े। शायद उसे शामिर की वसाहत पर यकीन आ गया था। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? शामिर ने मध्यम मगर उलझे हुए लहजे में पूछा। ये तो हरम का कमरा है, और वो आवाज़? शामिर की ज़बान में जिस इज्जत, जिस एहतराम से हरम जी का जिक्र निकला था, उस पर जिब्रान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एक मर्द की तरफ से औरत के लिए ऐसा लहजा कम से कम ही सुनने को मिलता है। हाँ यार, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो दवा लेने से इनकारी थी। गुस्सा आ गया मुझ पर, इसलिए आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। जिब्रान ने मध्यम लहजे में बात की, जैसे अपनी नरमी का पर्दा डाल रहा हो। सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें डिस्टर्बेंस हुई। क्या मतलब? क्या हुआ है उन्हें? तबीयत ठीक है ना इनकी? शामिर के लहजे में अब सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे उसने इस जुमले में सिर्फ हरम सुना हो, बाकी सब लफ्ज़ पसे मंजर चले गए हों। नहीं, बस मौसम की तब्दीली से हल्का सा बुखार हो गया था। दवा दे दी, अब वो सो रही हैं। सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिब्रान ने नरम लहजे में तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही शामिर ने गुल का नाम लिया, जिब्रान ने फ़ौरन इसका बाजू थाम कर रोक लिया। नहीं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अगर सुबह तक तबीयत में बेहतरी ना हुई तो खुद कहूँगा उसे गुल से चेक करवाने। जिब्रान के लहजे में वजाहत थी। आर यू श्योर? शामिर ने एक बार फिर तस्दीक चाही, जैसे हरम का एक एक सांस उसके दिल की धड़कन से जुड़ा हो। कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था और अंदर बैठे हरम को न सिर्फ शामिर की आवाज़ बल्कि उसकी आंखों की गहराई तक सुनाई दे रही थी। वो गहरा एहतराम, वो बेचैनी, वो हिफाजती लय, वो सब कुछ जो कभी किसी ने इसके लिए यूं जाहिर नहीं किया था। शामिर की फिक्रमंदी, इसका यूं हरम को हरम जी कहना, उसके दिल की नरमी को जैसे छू गया हो। हाँ, आई एम श्योर, जिब्रान ने संजीदगी से जवाब दिया, मगर अंदर कहीं वो शामिर की आंखों में छुपे जज्बे को पहचान चुका था।
जिसे वो 2 हफ्तों से महसूस कर रहा था। वो भांप चुका था कि किस तरह शामिर बातों बातों में हरम की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता, किस तरह बहाने बहाने से इस बात से छिड़ता, और अब वो यूं बेकरार खड़ा था जैसे हरम की तकलीफ इसके वजूद में सरायत कर गई हो। ठीक है, अगर सुबह तक बुखार ना उतरा तो गुल को ज़रूर दिखाना। शामिर अभी वही जुमला दोहरा रहा था जैसे इसके दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। समझ गया भाई। जिब्रान ने इसके कंधे पर हाथ रखते बात बदली। चल, आज रात देर हो गई, क्यों ना जागते हुए गुजार दें, परसों तो हमें निकलना ही है। ये सुनकर शामिर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। लेकिन हैदर खान से अगले दिन की बात का पक्का इरादा किए वो मुतमईन सा हो गया, जैसे दिल ने तसल्ली दे दी हो। वो दोनों बातें करते शामिर के कमरे की जानिब बढ़ गए। जिब्रान के कदम जैसे उसके कमरे से दूर हुए, हरम आहिस्तगी से उठी, दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया, फिर पलटकर बेड पर आ गई। उसने आंखें बंद की और पलकों पर ठहरी नमी उसके दिल के किसी पुराने दरीचे को खोल कर ले गई। माजी के इस दरीचे में अब एक नरम सा मंजर उभरा, वो मंजर जहाँ शोर, हंसी, बचपना, मोहब्बत और एक मासूम से अपने बाबा की शहजादी थी। मामा जाने हनान को बोले मेरा नावल वापस करें। सैनब की आवाज़ में रूहान सी बेबसी थी जो सहन से अंदर आती। सायरा बेगम तो जाग पहुंची। वो सब्जी काटते हुए अपनी बेटी के ऐसा अंदाजे शिकायत को अच्छी तरह पहचानती थी। हनान मत तंग करो, इसे दे दो वापस इसका नावल। सायरा बेगम ने अब सब्जी छोड़कर हांडी चढ़ाने की तरफ तवज्जो दी, मगर दिल ही दिल में जानती थी कि अब एक हंगामा बर्पा होने वाला है। मामा मैं नहीं दूंगा इसे कहें इसे पहले मेरी शर्ट इस्त्री करें, मुझे कोचिंग जाना है। हनान सोफे पर चढ़कर ज़ैनब से बचने की कोशिश में था और वो नीचे से हाथ बढ़ा बढ़ा कर नावल छीनने की सही कर रही थी। भाई मैं नहीं करी, अपने काम खुद किया करो। ज़ैनब की पेशानी पर बल पड़े और वो नावल की जगह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगी। ड्राइंग रूम के एक कोने में चटाई पर बैठी फातिमा दोनों को खामोशी से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे समझ ना आए कि लड़ाई में किसका साथ दें। फिर शायद उसके नन्हे दिन में किसी मेहरबानी ने जन्म दिया। वो आहिस्तगी से उठे और हनान के करीब जा पहुंची। भाई लाएं, मैं कर देती हूँ, आराम आराम से। उसकी मासूम आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि सायरा बेगम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। हनान ने उसे नरमी से देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाते सख्ती से कहा, नहीं, मेरी शर्ट तो आप ही इस्त्री करेगी, वरना मैंने ये फालतू नावल कबाड़िए को दे देना है। उसके लहजे में खालिश शरारत थी, मगर ज़ैनब का पारा चढ़ चुका था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी ना, खबरदार मेरे नावल को फालतू बोला या किसी को दिया। ज़ैनब जूती उठाकर लपकी, मगर सायरा बेगम की खुशीली आवाज़ पर वहीं रुक गई। तुम लोगों को समझ नहीं आती, जरा शर्म लिहाज है या नहीं तुम लोगों में? सायरा बेगम की आवाज़ में वो माँ बोल रही थी जो अपने बच्चों की नासमझी पर दिल ही दिल में टूटती है। भाई दे दो ना, मैं कर लूँगी आराम आराम से। फातिमा का शौक, इसका खलूस सब इसके चेहरे से झलक रहा था। अच्छा ये ले, लेकिन एहतियात से करना, मेरी नई शर्ट है, जला मत देना। हनान ने झिझकते हुए शर्ट थमाई और फातिमा को यूं जैसे फूलों पर चलती हुई इस्त्री स्टैंड की तरफ जा पहुंची। हनान से नावल छीन कर ज़ैनब ने चटाई पर लेटते ही किताब खोली और फ़ौरन उसमें खो गई। हनान ने टीवी ऑन कर लिया। सायरा बेगम हांडी में मसरूफ़ हो गई। फातिमा इस्त्री पर ध्यान दे रही थी, मगर वह मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक चीख ने सारा घर हिला दिया। हाय मेरे अल्लाह, मेरी फातिमा! सायरा बेगम दिल थामे ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ी। इनके पीछे ज़ैनब और हनान भी भागे। ज़मीन पर बैठी फातिमा अपना हाथ थामे सारों कतार रो रही थी। इस्त्री की तार लगी हुई थी और इसकी हथेली पर जलन का सुर्ख निशान फैल चुका था। सायरा बेगम ने फातिमा का हाथ थामा, होंठों से फूंके मारते उसे गले से लगाया। हाय मेरी बच्ची, मेरी फातिमा का हाथ। अम्मा सदके, बस बेटा बस। फातिमा की सिसकियाँ माँ की गोद में छुपी थी। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। नन्ही सी जान ने जैसे कलेजे में हाथ डाल दिया हो। हनान जा फौरन टूथपेस्ट ला, जल्दी करो। हनान हड़बड़ाया, जल्दी से भागता हुआ लाकर पेस्ट दिया। सायरा बेगम ने नरमी से उंगली पर लगाकर फातिमा के हाथ पर लगा और मुसलसल फूंके मारती जा रही थी। मेरी शहजादी, मेरी माँ कुर्बान, बस अभी आराम आ जाएगा। बहुत बहादुर हो मेरी बेटी। माँ की ममता इस वक्त लफ्ज़ों में धुली आंखों से बहती, हाथों से चिमटी जा रही थी। अम्मी मैं इसे कह रहा था आप इसे की शर्ट इस्त्री कर दे। अगर वो मान जाती ना तो ऐसा ना होता। हनान ने फ़ौरन सारा इल्ज़ाम ज़ैनब पर डाल दिया। वो जो चुपचाप शर्मिंदगी से खड़ी थी, अब कमर पर हाथ रखकर धाड़ने को तैयार थी। तो तुम खुद कर लेते, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी थी? ज़ैनब की आवाज़ ऊंची हुई ही थी कि सायरा बेगम गरज गई। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुम दोनों की वजह से मेरी बच्ची का हाथ जा गया। बजाय शर्मिंदा होने के अभी भी लड़ रहे हो। ज़ैनब, तुम्हारे नावलों को मैंने आग लगा दूंगी। तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों से। सायरा बेगम का ज़ब्त टूट चुका था और वो दोनों शर्मिंदा चुपचाप गायब हो गए। फातिमा सायरा बेगम की गोद में रोते रोते सो गई थी।
नींद में भी सिसकियां से के नाजुक वजूद को हिला रही थी। रात के जब दाऊद साहब घर आए तो हनान और ज़ैनब दोनों को खूब डांट पड़ी और अगला पूरा हफ्ता सबने फातिमा का खास ख्याल रखा, खासतौर पर ज़ैनब ने। एक गहरा लम्हा था वो, एक याद बनकर दिल के किसी नरम गोशे में उतर गया था। दिल इतना नरम भी मत रखो कि कोई पैरों तले कुचल दे। फोन की मखसूस पहल ने माजी के खूबसूरत मगर दर्दनाक सफ़े को अचानक बंद कर दिया। आंखें खोलकर उसने फ़ोन कान से लगाया। पता चला कहाँ है वो। आवाज़ सर्द थी, बेरंग, जैसे जज्बात कभी थे ही नहीं। कल सुबह तक इसकी तस्वीरें चाहिए मुझे। वक्त गुजरने के बाद की मालूमात मेरे किसी काम की नहीं। गॉट इट। कॉल काट कर फ़ोन साइड पर रखा। वो जानती थी वक्त करीब है, बहुत करीब। वो लम्हा जब इसे इसका हक मिलेगा। उसकी नज़रें वॉल क्लॉक पर टिकी थी, जिसके कांटे आधी रात पार कर चुके थे। फिर उसने अपनी आंखों में ठहरी नमी को इन मखरूती नाजुक उंगलियों से साफ किया, मगर ये आंखें फिर से वैसी ही हो गई, बंजर, बेएहसास, ऐसी ज़मीन जहाँ कभी वहाँ नमी नहीं थी ही नहीं। क्योंकि जब दिल में ज़ख्म हो तो आंखें खुद ब खुद वीरान हो जाती हैं, कभी हरी नहीं होती। नींद, वो तो खुश नसीबों के हिस्से की दौलत थी, और इसका नसीब, वो तो बरसों से स्याह चादर ओढ़े उसकी हंसी में भी निकल चुका था। आखिर इसका वक्त स्याह क्यों था? शायद तकदीर ने उसे दलदल की गहराइयों में छोड़ दिया था, जहाँ रोशनी की कोई किरण न थी। नमाज और निकाहें, सुबह की रोशनी में पड़ते, खामोशी की ज़बान, नमाज का वक्त, दिल की बातें, चुपके से उठने वाली मोहब्बत, धूप में छुपी परछाइयाँ। फजर की आज़ान की आवाज़ पर ज़ारा की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर बैठी। मुअज्जिन अपनी पूरी लगन से ये दुआ कर रहा था कि रब के बंदे अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में कुछ लम्हे निकाल कर अपने रब से मुलाकात कर सके। सारा जल्दी से बिस्तर से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुश्ते पर वज़ू करके बड़ी सी शाल नमाज के साथ अंदाज में ओढ़ी और बाहर आई। कोने में रखे टेबल से जाए नमाज उठाकर ज़मीन पर बिछाकर नमाज की अदायगी में मशगूल हो गई। नमाज पढ़कर जब उसने सलाम फिरा तो देखा बारान अभी भी सो रहा था। इतने दिन बारान के साथ रहने के बाद वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपनी नमाजें कज़ा नहीं होने देता, जिससे मालूम होता था कि उसे अल्लाह का खौफ है, और जिनके दिलों में नमाजों के कज़ा होने का खौफ होता है वो अपनी दुनिया और आखिरत में सुकून और कामयाबी पाते हैं। दुआ के बाद जब उठी तो बाराना भी गहरी नींद में था। उसने घड़ी में देखा तो नमाज के वक्त को ख़त्म होने में बस 20 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बारान के दाएं जानब खड़ी हो गई। तो नमाज के वक्त को ख़त्म होने में बस 20 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बारान के दाएं जानब खड़ी हो गई। सोच रही थी कि उसे कैसे जगाए। साईं, साईं। ज़ारा ने बारान को आवाज़ दी, मगर वो न जागा। फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। साईं, नमाज का वक्त हो गया है। सारा ने कंधा हिलाया, जो एक झटके से नींद से बेदार हुआ। बारान को उठता देख वो जल्दी से दूर और सर झुकाकर खड़ी हो गई। बारान की सुनहरी आंखें नींद के बाद सुर्ख हो रही थी। ट्राउज़र और शर्ट में बिखरे हुए बाल, नींद से बोझल आंखों से जब उसने ज़ारा को देखा तो वो बौखला गई। क्या हुआ है लड़की, क्यों तंग कर रही हो? बारान की आवाज़ नींद की गहराई में भारी थी। साईं, नमाज का वक्त हो गया है। सारा की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बमुश्किल बारान के कानों तक पहुंची। बारान ने वक्त देखा तो आंखें पूरी तरह खुल गई। वाकई बहुत कम वक्त बचा था। उसने जल्दी से अलार्म अपने साइड टेबल से उठाया, मगर शायद इसका सेल ख़त्म हो चुका था। अलार्म को बेड पर फेंकते हुए वो जल्दी से उठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। कुछ ही देर में सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली अजरक ओढ़े वो बाहर निकला। ज़ारा यकटुक उसको देख रही थी। दाढ़ी से टपकते वज़ू के कतरे, पेशानी पर भीगे हुए बिखरे बाल और पलकों पर ठहरी नमी। क्या उसने कभी इतना खूबसूरत मर्द देखा था? नहीं। बाप और भाई के बाद अगर किसी को उसने इतनी बारीकी से देखा था तो वो इसका महरम था। बारान ने घड़ी पहनकर शीशे में से ज़ारा की सूरत देखी, जो अपनी बड़ी बड़ी सी आंखें बिना झपके उसकी तरफ देख रही थी। बारान ने ज़ारा की तरफ मुड़कर देखा तो अचानक से पटाकर नजरें झुका गई। बहरान ने पहली बार देखा था कि किसी के चेहरे का रंग इतनी तेजी से बदलता है, और यह रंग उसे बहुत दिलकश लगा। सारा सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ रही थी। बैड हैबिट, बारान ने नफ़े में सर हिलाते कहा। सारा फौरन सीधी हो गई। बारान ने वक्त देखा, फिर अपने अजरक कंधों पर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो दिल थाम कर खड़ी थी। बारान के जाते ही ज़ारा भी जल्दी से कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसे सबके लिए नाश्ता तैयार करना था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, लेकिन बदकिस्मती से एक मुलाजमा ने उसे बारान के कमरे से निकलते देखा था। उसने ये बात फौरन हिब्बा खानम के कान में पहुंचा दी, जो समझ रही थी कि वह ज़ारा को इसकी औकात दिखा चुकी है। इस बात पर वो आग बगोला हो गई और उसका साजिशी दिमाग अनगिनत जाल बुनने लगा। दोपहर के वक्त तमाम औरतें लाउंज में और मर्द हजरात मर्दान खाने में मौजूद थे, जब अस्मा खानम ने नरमी से ज़रमीने का मुखातिब किया। जाओ, जाकर हरम बच्चा को बुला कर लाओ। भाभी, आप इसे क्यों बुला रही हैं?
हिब्बा खानम नागवारी से उनकी तरफ देखते बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारा मेहमान है? शामिर ने उसे ज़बरदस्ती रोका है। कल घर में इतनी बड़ी तकरीब है, पता नहीं इस बच्ची के पास यहाँ के रस्म व रवाज के मुताबिक लिबास भी है या नहीं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मेहमान का ख्याल रखें। अस्मा खानम को वैसे ही सारा पर होने वाले बुरे सलूक से दिल गिरफ्ता थी। वो इस मामले में खामोश थी, मगर इस बात पर हिब्बा बेगम को अच्छी खासी सुना डाली, जिस पर हिब्बा खानम का चेहरा नदामत से स्याह पड़ गया। भाभी, बोलने से पहले सोचा करो, कम से कम आसपास का ही लिहाज कर लिया करो। ढेरों मुलाजिम खड़े हैं यहाँ और तुम हमसे ऐसे लहजे में बात कर रही हो। हिब्बा खानम निहायत दुरुस्त अंदाज में बोली, मगर अस्मा खानम के चेहरे पर सकून की हल्की सी लहर थी, जैसे उनके लहजे की तलखी उनकी रत्ती बराबर असर न डाल सकी हो। अलबत्ता जुबिया खानम, परीगुल और ज़रमीन ने नागवारी से हिब्बा खानम की तरफ देखा, जैसे इनके रवैये ने फ़िज़ा को कुछ और तल्ख कर दिया। और एक तल्ख इंसान की हकीकत यह है कि वह दूसरों को तकलीफ़ देकर अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करता है, जैसे कि हिब्बा खानम। सायरा बदस्तूर पुरसकून अंदाज में मोबाइल पर टिक टॉक देखने में मसरूफ़ थी, जैसे उसकी मौजूदगी और खैर मौजूदगी बराबर हो। मोरे, मैं जाती हूँ। सरमीन नरमी से उठती हुई हरम के कमरे की जानिब चल दी। उसने जाकर बंद दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, जो दूसरी दस्तक पर ही खुल गया। अदी, आपको मोरे बुला रही है। हरम का दिल चाहा इनकार कर दे, मगर ज़रमीने की आंखों में मौजूद मासूमियत उसे रोक गई और वह सर हिलाती हुई इसके साथ चल पड़ी। आओ हरम बच्चा, हमारे पास बैठो। अस्मा खानम के लबों पर एक नरम मुस्कुराहट थी। उनकी बात में मानो माँ जैसी अपनायत छुपी थी। हरम आस्तगी से चलती हुई उनके पास रखी खाली कुर्सी पर बैठ गई। आंटी, आपको मुझसे कोई काम था? हरम ने मामूली से लहजे में पूछा, मगर अस्मा खानम की आंखों में उसके लिए खालिस सा प्यार झलक रहा था। नहीं बच्चा, हमको तुमसे कोई काम न था, बस तुम्हें कुछ देना था। मोरे जाओ, हमारी अलमारी के दूसरे खाने से एक बैग ला कर दो। ज़रमीना इस बात में सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। कुछ लम्हों बाद वो एक बड़ा सा शॉपिंग बैग उठाए लौटी। मोरे, ये वाला? उसने हल्के शक के साथ पूछा। हाँ, यही वाला दो हमें। हमारा अस्मा खानम ने बैग लेकर हरम के हाथ में थमाया, जिसने उसे सवालिया नज़रों से देखा। बेटे, ये हमारे यहाँ के रवायती लिबास हैं, कल तुम यही पहनना। हरम ने खुद को बैग के अंदर झांकते हुए पाया। उसने ब्लैक टाइट पैंट, पिंक शर्ट और लेडीज जैकेट पहन रखी थी। सुनहरे बाल ढीले जूड़े में बंद थे। साफ ज़ाहिर था कि वो किसी और दुनिया से आई थी, मगर 15 दिन से इस घर का एक खामोश सा हिस्सा बन चुकी थी। सॉरी आंटी, बट मैं ये नहीं ले सकती। हरम चाहकर भी लहजा सख्त नहीं अपना सकी। उनकी इज्जत, उनकी मेज़बानी, उनके तर्ज मोहब्बत ने उसके दिल में नरम सी जगह पैदा कर दी थी। वो खाना अपने कमरे में खाती। शुरू में सबके साथ बेहद अजनबियत बरती, मगर इन लोगों ने फिर भी उसे इज्जत दी, जगह दी। बेटा, हम तुम्हारी माँ की जगह है, हमारी बात नहीं मानोगी? माँ का जिक्र आते ही हरम का दिल जैसे लरज उठा। उसके होंठों पर खामोशी और सर खुद ब खुद अस्बात में हिलने लगा। अस्मा खानम के दिल में कोई गरूर न था, बस वो चाह रही थी कि इस बच्ची को अपनेपन का एहसास हो। शामिर ने ये लिबास खुद लाकर उन्हें दिया था कि वो खुद ना देना चाहता था। वो चाहता था कि हरम ये नरम मोहब्बत, ये खालिस तवज्जो खुद महसूस करे। ठीक है, मैं पहन लूँगी, थैंक यू। हरम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और बैग लेकर उठ गई। कभी कभी याददाश्त का तेज़ होना भी अज़ियत बन जाता है। हम जितना भूलना चाहते हैं, कोई छोटा सा लफ्ज़, एक इशारा या लम्स सब कुछ फिर से ताज़ा कर देता है, जैसे ज़ख्म के ऊपर से पट्टी हटा दी गई हो। यही मसला हरम के साथ भी था। अस्मा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। ज़ुबी खानम आस्तगी से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। मोरे, मैं भी अस्पताल के लिए निकल रही हूँ, मुझे बारान लाला छोड़ देंगे? परीगुल अपना बैग संभालती रवाना हुई। वो हौस जॉब पर थी, छुट्टी करना नामुमकिन था। मोरे, ये खांजी और चचा जान कब तक आएंगे? सरमीन लाड से अस्मा खानम के गले में बाहें डालकर बोली। अलबत्ता हिब्बा खानम बिगड़े मूड के साथ वहाँ से गायब हो चुकी थी और सायरा की मौजूदगी अभी बेमायनी थी। मोरे, कल आ जाएगा तुम्हारा खांजी और चचा। तुमने कल की तैयारी की है? क्या पहनोगी तुम? अस्मा खानम ने कहवे का खाली कप मेज़ पर रखते ज़रमीने को देखते पूछा। ज़रमीने ने शरारती मासूमियत से ज़बान दांतों तले दबाते सर नफ़ी में हिलाया। मोरे, वो मुझे याद नहीं रहा, अभी निकाल लेती हूँ। इसके लहजे पर हंसते हुए अस्मा खानम ने मोहब्बत से एक चपत उसके सर पर मारी। चलो आओ, हम तुम्हें अच्छा सा कपड़ा दिखाते हैं, तुम कल वही पहनना। वो दोनों हंसती बातें करती कमरे की तरफ बढ़ गई। जिब्रान मर्दान खाने में शामिर के पास बैठा था जब इसका फ़ोन बजा। कमरे में सब मर्द मौजूद थे सवाए बारान के, जो परीगुल को अस्पताल छोड़ने गया था। हाँ हरम, बोलो। जिब्रान ने कहा सुनते ही फ़ोन कान से लगाया। लम्हा भर बाद वो बोला,
اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں انتظام کرتا ہوں۔ کال ختم کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھتے ہی محسوس کیا کہ سب کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ شامر کی آواز سامنے سے آئی، کیا ہوا؟ کس چیز کا انتظام کرتا ہے؟ جبران ایک لمحے کو رکیا، کچھ کہنا چاہا پر ہلکا سا کھنکار کر بولا، بس اسے بائک چاہیے، یہاں کے پہاڑی علاقے گھومنے ہیں اسے۔ پہلی بات سچ تھی اور دوسری تھوڑا سا گھڑا ہوا جواز۔ حرم جب بھی اداس ہوتی تو وہ اکثر رائڈنگ کا سہارا لیتی تھی۔ بائک، یہ لفظ بیک وقت سب کے زبان سے نکلا اور سب سے بلند آواز ارمان کی تھی، جس کی آنکھوں میں بائک کا جنون چمکنے لگا۔ انہیں بائک چلانی آتی ہے؟ شامر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس وقت گرے شلوار قمیض پہنے کندھے پر گندمی شال اوڑے بیٹھا تھا، جیسے اس کا سارا وقار کسی پرانی روایات میں لپٹا ہو۔ شامر، تم نہیں جانتے وہ رائڈنگ میں ماہر ہے۔ جبران کے فخر بھرے لہجے پر شامر نے اپنے تاثرات سمیٹ لیے۔ اچھا یار، میں ذرا اس کی بائک کا بندوبست کر لوں ورنہ وہ واقعی میری جان لے لے گی۔ وہ مسکرا کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے ارمان کی پرجوش آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ جبران بھائی، میرے پاس اسپورٹس بائک ہے، آپ انہیں وہ دے دو، بلکہ میں خود ان کے ساتھ چلتا ہوں، پورا علاقہ دکھاؤں گا۔ ارمان کی آنکھوں میں جیسے چمک لوٹ آئی تھی، البتہ ربان خان کا چہرہ سختی سے ڈھلک گیا۔ انہیں کبھی پسند نہیں آیا کہ لڑکیاں لڑکوں جیسے شوق پالیں، خصوصاً اس علاقے میں۔ آر یو شیور؟ جبران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارمان نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تو خود برسوں سے کسی ایسے موقع کا منتظر تھا، لیکن اس کے لالا اسے منع کرتے تھے۔ ان پتھریلی زمینوں پر بائک چلانا نہایت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن شامر کی آواز میں اچانک سنجیدگی اتر آئی۔ یہاں کی زمین بہت سخت اور پتھریلی ہے، کہیں چوٹ موٹ نہ لگ جائے۔ ارمان کی زبان رک گئی، وہ خود بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اب یہ بات کسی اور کے منہ سے سن کر اس کے دل پہ جیسے چوٹ لگی۔ شامر، تم ابھی دیکھی ہی نہیں ہے اس کی رائڈنگ، اس لیے کہہ رہے ہو۔ اس جیسی مہارت شاید سوات کی خانزادوں کو بھی نہ نصیب ہو۔ جبران کے لہجے میں وہی فخر تھا جو کسی گہرے اعتماد سے جنم لیتا ہے۔ ارمان کے ماتھے پر خفگی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ جی نہیں، میں بھی رائڈنگ کر سکتا ہوں، وہ بھی بہت اچھی۔ ارمان جیسے ایک دم سے تب کر بولا۔ خانزادہ سوات کا ہو اور بات غیرت پر آ جائے تو خاموشی کہاں رہتی ہے؟ ارمان، ربان خان نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، جس پر وہ خاموش ہو گیا، مگر چہرے پر خفگی اور دل میں چنگاری باقی تھی۔ وہ جوش میں آیا تھا، مگر اپنی غیرت کو جیسے دل کے اندر پھر سے سلا دیا۔ جبران، حرم جو اس کے کال پر باہر آئی تھی، حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑے جبران کے ساتھ ارمان اور شامین کو دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کی نگاہوں میں سوال بھی تھا اور حیرانی بھی، جیسے وہ خاموش زبان میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ دونوں یہاں کیوں ہیں۔ شامر کی نظریں اس پر جا ٹھہری، وہی سنہری بال، سادہ مگر باوقار لباس اور ایک عجیب سا سکون جو اس کے ارد گرد فضا کو چھو کر گزرتا تھا۔ عجیب لڑکی ہے یہ، خاموش ہو کر بھی شور مچاتی ہے۔ اس کے ذہن میں بے ساختہ خیال آیا۔ حرم، ارمان تمہارے ساتھ جائے گا، جبران نے نرم انداز میں کہا اور بائک کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ حرم نے چابی ہاتھ میں لی، مگر اس کے ہلکے سے اونچے ابرو اور سوالیہ نظروں نے لمحے بھر کو جبران کو لاجواب کر دیا۔ جی جی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ارمان پرجوشی سے بولا، جیسے برسوں سے کسی مہم کا انتظار کر رہا ہو۔ حرم نے ایک قدم پیچھے ہٹا، سر جھکا کر ہلکا سا مسکرائی، پھر شامر کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ مگر واضح لہجے میں بولی، کیا یہ میرے ساتھ بائک پر جائے گا؟ یہ جملہ نہیں تھا، ایک باوقار چیلنج تھا، خالص حرم کے انداز میں۔ ارمان کی رنگت تھوڑی بدل گئی۔ جبران نے ہونٹ دبائے اور شامر، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی پر مشکل روکی۔ یہ لڑکی کسی دن ہمیں ہنستے ہنستے شرمندہ کر دے گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، میں اپنی گاڑی میں آؤں گا۔ ارمان نے فوراً صفائی دی اور جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ حرم خاموشی سے بائک کی طرف بڑھی، اس کی چال میں اعتماد تھا، قدموں میں ٹھہراؤ۔ اس نے اپنے پاؤچ سے دستانے نکال کر پہنے، ہیلمٹ سر پر رکھا اور جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، فضا میں ایک نرم سی گرج پھیل گئی۔ شامر کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اس کے ذہن میں بے اختیار ایک خیال ابھرا، یہ لڑکی روشنی کی طرح ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بائک کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے حرم نے ایک لمحے کو گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کی نظریں جبران سے ہوتے ہوئے پل بھر کو شامر سے ٹکرائیں اور وقت ٹھہر گیا۔ شامر کی نگاہوں میں کچھ تھا، نہ حیرت نہ سوال، بس ایک گہری خاموشی جو شاید اس کے دل کی زبان تھی۔ واہ، حرم نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی بھی اتنا مشکل ہے، یا شاید میں ہی آسان نہیں ہوں۔ اگلے ہی پل وہ فل سپیڈ میں بائک بھگاتی ارمان کی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ بائک کی گھن گرج اور مٹی کی خوشبو فضا میں اڑتے ہوئے پیچھے رہ گئی اور شامر چند لمحے وہیں کھڑا صرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ نہ وہ روایتی تھی، نہ بغاوت میں تھی، بس اپنی حدود میں مکمل۔ شامر کے دل میں ایک نرم سا احساس ابھرنے لگا، جس کا نام شاید اسے ابھی معلوم نہیں تھا۔
راستے سنسان تھے مگر ہوا میں وہی آزاد خوشبو تیر رہی تھی جو صرف پہاڑوں میں ملتی ہے۔ ہارم فل اسپیڈ میں بائک دوڑاتی جا رہی تھی جو پیچھے ارمان بمشکل رفتار کا ساتھ دے پا رہا تھا۔ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ کوئی لڑکی بائک نہیں پورے منظر کو قابو میں لیے ہوئے۔ راستہ مڑتے ایک سبزہ زار وادی آ گئی جہاں پہاڑ جھک کر زمین کو چوم رہے تھے۔ وہاں چند قدیم درخت کھڑے تھے اور ان کے سائے میں پھیلا سرسبز فرش دل کو ایک لمحے کو ٹھہرنے پر مجبور کرتا تھا۔ حرم نے بائک روک کی، ہیلمٹ اتارا، چند لمحے ارد گرد دیکھنے کے بعد خاموشی سے ایک پتھر پر جا بیٹھی جہاں سامنے گہری کہانی تھی یا شاید وہ کوئی پرانی یاد تھی۔ اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں چہرے سے سرکتی ہوئی دھوپ اور سائے کے سنگم میں ایک تصویر سی بن گئی۔ ارمان گاڑی سے اترا، اسے دیکھ کر چند قدم چل کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی رک گیا۔ یہ لمحہ خاموش تھا اور اس کی فطرت ایسی تھی کہ اس لمحے کی بے آواز عظمت کو لفظوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر حرم خود ہی بولی، جیسے اس کے سوال کا جواب پہلے سے سن رکھا ہو۔ یہ جگہ دیکھی نہیں لیکن محسوس پہلے کی ہوئی ہے۔ وہ نیچے سبزے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کچھ جگہ ہماری روح کے اندر کہیں محفوظ ہوتی ہیں، ہم بس وقت پہ وہاں پہنچتے ہیں۔ ارمان نے آہستہ سے کہا۔ حرم نے سر اٹھا کر ایک پل کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ہو سکتا ہے، شاید ہم خود بھی ایسی ہی جگہ ہوں جہاں کچھ لوگ کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ یہ جملہ سن کر ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لمحے کے لیے یہ بات کافی تھی۔ زارون ڈیوٹی سے فارغ ہو کر حویلی کے لیے نکلنے والا تھا، کچھ سلجھے اور کچھ الجھے سے بال، سرخ کالی آنکھیں، نیند کی کمی کی وجہ سے سوجے ہوئے، پیشانی پر گہرے بال، کریم شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس، ہاتھ میں اوور کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ۔ اس لمحے وہ نہایت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسٹاف تبدیلی ہوتی ہے۔ مارننگ شفٹ سے نائٹ شفٹ کی منتقلی کا سلسلہ جاری تھا اور زارون بھی سفید راہداری میں خاموشی کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ لیکن اچانک اس کے شعور میں ایک چنگاری سی جل اٹھی۔ کافی دنوں سے وہ پریش زمان سے نہ ملا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ان دنوں کافی سخت تھی اور اب کی روانی کا رخ بدلا۔ بلا ارادہ اسی مقصد کی طرف مڑ رہا تھا۔ زارون بے اختیار قدم روم نمبر 7 کی جانب اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ اس نے دوبارہ دستک دی لیکن غیر معمولی سکوت نے اسے ڈرا دیا۔ ایک خاموش ٹوٹنے کی آواز نے اس کی بے چینی بڑھا دی۔ آخرکار وہ انتہائی بے قرار ہو کر وارڈ بوائے کو پکارنے لگا۔ سلیم، جلدی روم نمبر 7 کی چابی لے کر آؤ۔ اس کی آواز میں اضطراب کے ساتھ خوف بھی تھا۔ اسٹاف اس طرف متوجہ ہو گئے۔ سلیم دوڑتے ہوئے آیا۔ زارون نے فوراً چابی چھین لی، لاک کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی منظر نے اسے پتھر کا کر دیا۔ پریشا بیڈ پر چٹ لیتی تھی، چھت کو گھورتے اس کی نیل کو بڑی گول آنکھیں بند تھیں، لمبی پلکیں پھرتی رہیں، گال گلابی، ایسی بے خود کیفیت میں اس کی صورت میں پاکیزگی کی روشنی چھلک رہی تھی۔ چند دنوں کی کاؤنسلنگ نے اس کی حالت میں بظاہر بہتری لائی تھی مگر کوئی کمرے سے ہٹائی گئی چیز، کوئی شیشہ، کوئی زاویہ جسے وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، غائب تھا۔ نتیجتاً وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اسے لمحے غفور حاسد انداز میں اس کی طرف جھکا۔ وہ ایک وارڈ بوائے تھا جو کئی دنوں سے اس پر نظریں ٹکائے ہوا تھا اور آج موقع پا گیا تھا۔ اس کے پاس الزامات، گھورتی نظروں یا بیداری نیت کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ ارے بلبل، مجھ سے کیوں چھپ رہی ہے؟ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں۔ جیسے اس نے قریب آ کر اسے چھونے کی کوشش کی، پریشا نے جواباً چلاتے ہوئے اس دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پھر غفور کی ہنسی نے اس کے تحمل کو چیر دیا۔ وہ خوفزدہ سی چیخ نکالنے لگی مگر غفور اسی پر حاوی ہوا۔ تبھی کسی کے قدموں کی جلدی سے آواز نے کمرے کا توازن بدل دیا۔ وہ قدم زارون کے تھے جو مد مقابل کھڑے تھے، پریشا کے ساتھ اس کی شدت، غفور پر قابو پانے کی بے تحاشا توانائی۔ وہ لمحہ جنون اور حکم کا سنگ دل تھا۔ زارون نے غفار کو ایک گھونسا مارا، پھر دوسرے، وہ صرف مار رہا تھا، آنکھوں میں غضب کی آگ، لہجے میں قبائلی غضب۔ غفور کے قدم لڑکھڑائے، وہ زمین پر گرا۔ زارون کی رگنی زبان سے گالیوں کی بارش جاری تھی۔ وہ واقعی اس لمحے زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے پسٹل نکالی مگر وہیں ایک آواز تیزی سے اسے حرکت میں روکا۔ سر، وہ بے ہوش ہو رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر مشاہد کی آواز تھی۔ سر، مریضہ زندہ دل ہے، اس کی جان بچانا ہمارا فرض ہے، بندوق بعد میں جان پہلے۔ زارون رک گیا۔ اس نے غفور کو ایک آخری لات ماری، پھر کمرے سے بھاگتے ہوئے پریشا کے پاس آیا۔ اے پری، اوپن یور آئیز۔ زارون نے اس کے گال نرمی سے تھپ تھپائے، اسے ہوش دلانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ پریشا کی سانسیں غیر منظم تھی، اس کا چہرہ ہلکے زرد اور آنکھوں کے پپوٹے بند تھے۔
वो लम्हा एक डॉक्टर के लिए नहीं, एक बेबस इंसान के लिए कठिन था। सारू ने फौरन झुककर इसे बाजू में भर लिया। वो कामती निढाल सी गुड़िया उसके बाजू में बेजान थी, जैसे सांसों की डोर लम्हा ब लम्हा खिसक रही हो। वो लंबे तेज कदमों से ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ा। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग की कैफियत और माइग्रेन जैसे पेचीदा केसेस रोज देखता था, मगर आज मामला किसी और का नहीं, परिचय का था। वो लड़की जिसकी खामोशी उसे अपने अंदर गूंजती सुनाई देती थी। परिशु को शायद माइग्रेन का दौरा पड़ा था, जिसमें वक्त की हर एक सेकंड अहम होती है। जरा सी ताखिर उसकी ज़िंदगी के चिराग को बुझा सकती थी। तकरीबन 2 घंटे की तवील जदोजहद, दवा के ज़ेर असर सांसें वापस आईं। मशीन पर हल्की सी हरकत, वो नाजुक पलकें जो मध्यम सी लरसी। वही लम्हा था जहाँ ज़रून ने गहरी सांस ली, जैसे पूरी कायनात का बोझ एक पल को हल्का हो गया। अब वो खतरे से बाहर थी, अंडर ऑब्जर्वेशन, मुकम्मल नरमी, खामोशी और साए में लिपटी। सारू आहिस्तगी से वार्ड के एक कोने में रखे सोफे पर बैठा, सर हाथों में थामे, ज़हन में बार बार वही सवाल। अगर मैं कुछ पल और लेट हो जाता, अगर मैं ना आता, अगर सलीम चाबी ना लाता। सोचों का दायरा इसके रोंगटे खड़े कर रहा था। इसका दिल, दिमाग, वजूद सब लरस रहा था। तभी डॉक्टर निशा की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। सर, आर यू ओके? निशा ने जांचती नज़रों से उसे देखा। इसका परिचय के लिए यूँ मुस्तरब होना उसे अंदर तक झंझोड़ गया था। वो पिछले 3 सालों से ज़ारन के तवज्जो की ख्वाहां थी। खामोशी से हर लम्हा उसके साथ काम करते हुए उम्मीद बांधती रही कि शायद कभी वो भी उसकी नज़र में कुछ बन जाए, लेकिन आज वो उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चेहरा देख रही थी, परिशय। सारू ने बगैर उसकी जानिब देखे सर्द और मुख्तसर लहजे में कहा, या मिस निशा, आई एम ओके, यू मे गो नाउ, आई विल मैनेज एवरीथिंग। हाँ मिस ईशा, मैं ठीक हूँ, आप जा सकती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। निशा ने न भिंचे न पसंदीदगी से रुख मोड़कर चली गई, उसके दिल में हसरत की एक गहरी लकीर छोड़ती हुई। ज़ारून की नज़रें दोबारा परिशय के चेहरे पर मरकूज थी, जो अभी होश में नहीं थी, मगर उसकी बंद आंखों से एक आंसू बह निकला था। बेहोशी में भी एक बेआवाज़ फरियाद, शायद जख्म याद दिलाने के लिए काफ़ी थे। ज़ारून की मुठ्ठियाँ सबसे भींची गई, दिल जैसे सीने की चींटियों को चीरने लगा। वो लम्हा सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, एक मर्द का, एक मुहाफिज का, एक मुजरिम सा नादिम इंसान का था। उसने खामोशी से फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर एक नाम टाइप किया, हैदर खान। राब्ता मिलते ही उसकी आवाज़ में एक अनजान सी संजीदगी थी। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाला था, एक फ़ैसला जो अब ना करता तो शायद कभी ना कर पाता। परिशय की आंखों के आंसू इसके दिल पर मोहर सख्त कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। सरीना खातून, जो शाम का खाना बनाकर खाकर सबके साथ लाउंज में बैठी थी, ये आवाज़ सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। लम्हा भर कर लाउंज में मौजूद सबके जिस्म साकत हो गए। दरवाजे पर खड़ा वजूद वजाहत और वकार की मुकम्मल तस्वीर था। ब्लैक पैंट, सफ़ेद शर्ट और ओवरकोट में मलबूस, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने, पाँव में महंगे लेदर शूज़, आंखों चमकती आंखें और रंगत में खुली सुर्खी। वो यूँ लग रहा था जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। वो बालाश दुराब खानज़ादा था, पाकिस्तान का नामवर वकील और ज़ारा खान का साबका मंगेतर। कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। पुरानी घड़ियाँ अभी खुली ना थी कि नई उलझनें सर उठा चुकी थी। कैसे हैं आप खाला जान? बालाज आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सरीना खातून के पास आए और अकीदत से इनके हाथ चूमे। सब लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वक्त अचानक पीछे पलट आया हो। कैसे हो लाला? जिसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था, बालाज से लिपट गया। मैं ठीक हूँ दिल, तुम कैसे हो? बालाज ने इसके बाल बिगाड़ते कहा। वो गिरदनवा पर नजर दौड़ाता रहा, लेकिन जिसे वो तलाश कर रहा था वो मौजूद ना थी। खाला जान, बाकी सब कहाँ नजर नहीं आ रहे? सरीना खातून ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए जवाब दिया। बेटा, सफ़ीर को खान ने बैरून मुल्क भेजा है काम से, और खान डेरे पर है, आता ही होगा। और ज़ारा, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही? ये सवाल जैसे पूरे माहौल पर बम बनकर गिरा। सरीना खातून की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। खाला जान, आप रो क्यों रही हैं? बालाज का दिल किसी अनदेखे तूफान की खबर दे रहा था। अशर, जो इसका सामान लेने दरवाजे पर खड़ा था, कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत न कर सका। माहौल की कशीदगी उसे मंजमद कर चुकी थी। सारा कहाँ है? बालाज की आवाज़ अब एक सवाल नहीं, धाड़ बन चुकी थी। उसी वक्त शेर खान हवेली में दाखिल हुआ और उनकी आंखों में लम्हे भर को घबराहट छलक गई। सारा को सफ़ीर खान के बदले बनी कर दिया गया है, दिल शेर ने बमुश्किल लब खोलकर सच बयान किया। बालाज सरीना खातून को देख रहा था जैसे इनके आंसू से सच का खून रस रहा हो। ये फैसला किसने किया? बालाज की आवाज़ अब बर्फ़ की सी सर्द और आतिश की सी जलन थी। ये वो बालाज नहीं था जो चंद लम्हे पहले शफकत से इनके हाथ चूम रहा था। ये खान दुराब था, जो ज़ारा के तकद्दुस का मुहाफिज था।
تایا جان نے دل شیر کے بولتے ہی بالاج کا رخ شیر خان کی طرف ہو گیا جو پسینے میں شرابور ندامت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کس سے پوچھ کر آپ نے زارا کو ونی کیا؟ بالاج قدم بقدم چلتے ان کے قریب آیا۔ کس کے ساتھ ونی کیا؟ اس کا شیر خان کا کالر دبوچ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کو ونی کرنے کی؟ خون آپ کے بیٹے نے کیا تو قربانی میرے لیے، قربانی کے لیے میری سارا کو پیش کر دیا۔ تب ایسے فیصلے پر اس نے جھٹکے سے کالر چھوڑا اور سر جھٹکتے ہوئے صحن میں رکھا ایک بڑا سا گملہ اٹھایا اور دیوار پر لگے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ جیسے ساری حویلی چیخ اٹھی۔ چپ، بالکل چپ، اگر کسی کی آواز نکلی کتی سے زبان کھینچ لوں گا۔ بالاج کی گھراہٹ سن کر سب کی آوازیں گلے میں دب گئی۔ اشر، گاڑیاں نکالو، سب گارڈز کو لے کر آؤ 1 سیکنڈ کے اندر۔ اس کی کمان جیسی آواز سے شیر خان کی جان حلق میں آ گئی۔ بالاج، تم کیا کر رہے ہو؟ اگر زارا واپس لائے تو وہ لوگ سفیر کو مار ڈالیں گے، اعلان جنگ ہو جائے گا۔ شیر خان نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ لوگ سفیر کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ زارا میری منگیتر ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ونی نہیں بنے گی۔ اگر آپ کوئی میرے راستے میں آئے تو اسے زمین میں گاڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ جاتے جاتے وہ شیر خان کے قریب رکا۔ اور ہاں، اب آپ صرف اپنا سوچیں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے دروازے کی جانب بڑھا اور اسے پار کر گیا۔ پیچھے شیر خان سکتے میں رہ گئے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ان کے فیصلے نے جنگ کے دروازے کھول دیے۔ چند لمحوں بعد حویلی سے 4 گاڑیاں زارا خان کی آزادی کے لیے روانہ ہو چکی تھیں، ایک نئی لڑائی کے آغاز کے ساتھ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکی پاگل ہے اور تم تو نہیں پاگل ہو گئے؟ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ جو نام اس نے بتایا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ ایک ذہنی مریضہ ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو زارون۔ حیدر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کب سے ضبط سے کام رہ رہے تھے لیکن زارون تھا کہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ زارون نے کچھ دیر پہلے انہیں کال کی تھی اور اب وہ روان خان شامیر کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھے۔ باران چونکہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں حویلی میں ہی رک گیا تھا۔ بابا وہ پاگل نہیں ہے، وہ ایک صدمے سے گزری ہیں۔ اسے گھر جیسا ماحول، پیار اور خیال ملے گا تو وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ بس ایک بار آپ اسے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سارون کی آواز میں ضد بھی تھی اور ایک عجیب نرمی بھی جو حیدر خان کو اور تب چڑھا رہی تھی۔ سارون، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ حیدر خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور سر پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس وقت کیبن کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ اندر روان شاہ اور شامیر بیٹھے تھے مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز اندر نہیں جا رہی تھی۔ بابا، آپ بھی تو میری بات نہیں سن رہے۔ سارون کے لہجے میں اب بھی وہی ضد تھی۔ سارون دیکھو، میں نے اور لالا نے پری گل کو تمہارے لیے سوچا ہے۔ یہ سنتے ہی سارون چونک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا جو اب نظریں اس سے ہٹا نہیں رہے تھے۔ آج صبح ہی ربان خان نے یہ بات چھیڑی تھی اور حیدر خان نے بھی فوراً رضامندی دے دی تھی، مگر آپ سارون کی یہ ضد انہیں الجھا گئی تھی۔ بابا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ گل بھابھی مجھ سے بڑی ہیں، میری بہن جیسی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ میری شہزادی لالا کی بیوی ہیں۔ سارون کے لہجے میں ناگواری تھی اور نظر میں شکوہ۔ حیدر خان اس کی بات پر نظریں چرا گئے۔ بیٹا، وہ اب شہزاد کی بیوی نہیں منکوہا تھی، اب بیوہ ہے اور عمر کا فرق تو صرف 3 مہینے کا ہے۔ اور رہی بات بہن جیسی لگنے کی تو بابا پلیز، زارون نے سخت لہجے میں بات کاٹی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو گل بھابھی کی شادی کرنی ہے تو شاہ لالا سے کروا دیں، لیکن مجھے اس معاملے سے دور رکھیں۔ اس نے یہ کہہ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارون، دیکھو، شامیر کے لیے ہم نے سائرہ کا سوچا اور جو کچھ بھی ہوا وہ تو تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یہ سنتے زارون نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے ہی جرگے میں ونی کی بات اٹھائی تھی، ورنہ ہم تو سفیر خان کو ہی خون بہا میں لیتے اور بات ختم ہو جاتی۔ اب ہمیں سائرہ کے لیے شامیر کو رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ تم جانتے ہو ہم پوری گل کے لیے شامیر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سارون تھوڑی دیر خاموش رہا، دانتوں سے ہونٹ چباتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جذبات میں اس نے کچھ ایسا کر دیا جو حساب برابر نہیں آنے دے رہا۔ بابا پلیز، مجھے ان سب میں مت الجھائیں، میں صرف پریشر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف ایک بار اس سے مل دیں، بہت پیاری سیدھی سادی سی لڑکی ہے۔ سارون کے لہجے میں جیسے کوئی اور ہی بات چھپی تھی۔ حیدر خان نے غور سے بیٹے کو دیکھا جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا مطلب ہے بس ایک بار مل لینا، اس نے شرمندہ سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آخرکار حیدر خان نے ہار مان ہی لی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو، لیکن میں لالا کو کیا کہوں گا؟ بابا، آپ دی گریٹ حیدر خان ہیں، یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے؟ زارون ہنسا لیکن باپ کی گھورتی نظروں نے اسے فوراً سنجیدہ کر دیا اور جلدی سے اندر چلا گیا۔
अगर तुम दोनों बाप बेटे ने खुद ही बातें करनी थी तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? रबान खान ने बालकनी से बाहर आते ज़ारून और हैदर खान को ऐसे घूरा जैसे इनकी क्लास लेनी हो। वो दोनों कब से शामिर और रबान खान को यहाँ बिठाकर खुद बालकनी में निजी मीटिंग फरमा रहे थे। रबान खान की बात पर हैदर खान थोड़ा सा गड़बड़ा गए, जिस पर शामिर ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और बाप को देखा। जब नजरें ज़ारून पर गाड़ चुके थे। शामिर ने ब्लैक शर्ट पर क्रीम लेदर जैकेट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। बाल फौजी स्लाइड में सलीके से सजे हुए थे, जबकि हैदर खान और रबान खान दोनों शलवार कमीज में मौजूद थे। रबान खान ने बादामी रंग की शलवार कमीज पर सफ़ेद शाल ओढ़ी थी और हैदर खान ने गंदमी शलवार कमीज पर ग्रे शाल ली हुई थी। नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आए। हैदर खान ने फौरन बात संभाली और रबान खान को अपने साथ लेते हुए दोबारा बालकनी की राह ली। इस बार दरवाज़ा बंद करना ना भूले। इन्हें बखूबी अंदाज़ा था कि इनके नालायक सपूत की वजह से रबान खान ने इनकी अच्छी खासी क्लास लेनी है और वो मंजर सबके सामने नहीं चाहते थे। हो क्या रहा है ये? पहले बाबा तुम्हें लेकर बालकनी में बंद हुए, अब बाबा जान ताया जान को लेकर चले गए। आखिर चक्कर क्या है? शामिर ने मशकूक नज़रों से ज़ारून को देखा, जो गहरा सांस लेते हुए पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाने लगा। शामिर तो जैसे हैरत से उछल पड़ा। वो फितने को आंखें निकालने लगा, जिसने उसे एक नई मुसीबत में फंसा दिया था। ज़ारून, तुमने बाबा को मेरे लिए परी गुल का रिश्ता सोचने का कहा। ज़ारून ने पूरी मासूमियत से दांत निकालते हुए हाँ में सर हिलाया, जैसे इसने कोई शाबाशी का काम किया। शामिर का बस नहीं चल रहा था अब इसी वक्त ज़ारून का मुंह तोड़ दे। मैं क्या करूं तेरा यार? शामिर ने दांत पीसते हुए छत की तरफ देखा। क्यों लाला, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? ज़ारून ने मासूम आंखों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि बेकसूर हूँ, बस थोड़ा सा रिश्ता पक्का करा दिए। ज़ारून, शामिर ने गहरी सांस लेते हुए पूरी बात उसके गोश्त गुजार दी। ज़ारून ने हैरत से आंखें फैलाई। लाला, मेरी नाक के नीचे तुम्हें मोहब्बत होगी और मुझे खबर भी नहीं हुई, और वो भी मिस संजीदा से? ज़ारून ने हरम के लिए नया खिताब रख छोड़ा था। जब से वो आई थी उसने उसके चेहरे पर संजीदगी के सिवा कोई तासुर नहीं देखा था, इसलिए वही नामुनासिब लगा। तो क्या नाक पर बैठकर मोहब्बत करता? और तमीज़ से नाम इनका हरम जी है। शामिर पहले तो नाक की बेइज्जती पर झुंझलाया, फिर हरम जी पर जैसे खुद को थप्पड़ मारने को तैयार हो गया। बस कर अब, बाबा आ रहे। शामिर ने बालकनी की तरफ देखा, जहाँ से हैदर खान बाहर निकल रहे थे। इनका चेहरा सुर्ख था और आंखों में वही गजब छुपा था जो ज़ारून के कान खींचने के लिए काफ़ी होता है। रबान खान इनके पीछे पीछे आ रहे थे। इनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। आइए भी बरखुरदार, मिलवाइए हमें उस बच्ची से जिसके नसीबात से बिगड़ने वाले। रबान खान ने ज़ारून को घूरते हुए कहा। ज़ारून इतना सा मुंह लेकर रह गया। ताया जान, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ज़ारून ने बमुश्किल सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रबान खान की तेज़ घुरी ने उसकी ज़बान बंद करा दी, दांतों में दबाकर। परीक्षा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सबके चेहरों पर मुख्तलिफ तासुरात थे। दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर सादा मगर ख़ास था। परीक्षा जो खामोशी से सेब के छोटे छोटे टुकड़े चबा रही थी, एकदम चौंकी। उसकी नज़रें खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए दरवाजे पर आ रुकी। डॉक्टर डॉक्टर परीक्षा घबरा कर अपनी जगह से उठते डॉक्टर शीजा से लिपट गई। वो वाहिद चेहरा था जो उसके लिए अजनबी नहीं था, वरना मामूली से हाल पर भी वो पैनिक में चली जाती थी। ज़ारून ने पहले शीजा को कॉल करके बुला लिया था, जानता था परीक्षा इसकी मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस करेगी। परी रिलैक्स करो, ये सब ज़ारून सर के घर वाले हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर शीजा ने नरमी से उसके बाल सहलाते हुए धीरे से समझाया। परीक्षा की करीब ढीली हुई, सांसें मामूल पर आई, मगर वो अब भी नजरें नीचे किए बैठी थी। थैंक यू डॉक्टर शीजा, आपने ड्यूटी पर ना होने के बावजूद मेरी एक कॉल पर आने का फैसला वक्त निकाला। मैं वाकई बहुत ममनून हूँ। ज़ारून ने धीमे और साइस्ता अंदाज में शुक्रिया अदा किया। सर, परी मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी हालत ऐसी है कि किसी पर भी असर छोड़ दे। आपने बुलाया, ये मेरे लिए एजाज़ है। शीजा ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया और परीक्षा के करीब बैठकर एक और सेब का टुकड़ा पकड़ा दिया, जिसे वो खामोशी से चबाने लगी। ज़ारून ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाया और कहा, बाबा, ये है परीक्षा सामान। ये सुनकर हैदर खान और रबान खान आगे बढ़े। उनके चेहरे पर संजीदगी और नरमी दोनों थी। दोनों ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। ये लम्स अजनबी नहीं, लेकिन नया ज़रूर था। डॉक्टर शीजा ये मंजर हैरत से देख रही थी। इन जैसे सख्तगिर सरदार एक ज़हनी और जज्बाती कमज़ोर बच्ची पर इस कदर शफकत से हाथ रखते हैरत अंगेज था। ज़ारून ने इसकी हैरानी को महसूस करते हुए बात वाज़ेह की। डॉक्टर शीजा, मैं मिस परीक्षा से निकाह करने जा रहा हूँ। शीजा ने चंद लम्हों तक उसे देखा, फिर उसकी आंखों में हैरत की जगह खुशी ने ले ली। सर, आप वाकई? जी,
सारून ने हल्की मुस्कुराहट लिए सर हाँ में हिलाया। शीजा ने बेख्तियार रुख मोड़ा परीशा से पूछा, परी क्या तुम्हें सारून सर से डर लगता है? परीशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद आहिस्ता से सर उठाया और नफ़ी में सर हिला दिया। ज़ारून की मूंछों तले एक मुतमईन से मुस्कुराहट उभरी जो देर तक इसके लबों पर ठहरी रही। ये तुमसे निकाह करने चाहते हैं, क्या तुम राजी हो? शीजा का लहजा इतना धीमा था जैसे वह आवाज़ से नहीं जज्बे से मुतमईन करना चाह रही हूँ। परीशा ने मुख्तलिफ लम्हे के तवक्कुफ के बाद सर इस्पात में हिला दिया। वह इस शख्स को कबूल कर रही थी जिसने एक मरीज़ा की बजाय इंसान समझा था। सारून ने निकाह खां का बुलाया। कुछ ही देर में ज़िंदगी के रिश्तों की एक नई लकीर खींच चुकी थी। परीशा ज़मान अब परीशा सारून हैदर खान बन चुकी थी। सब ने मुबारकबाद दी। माहौल खुशी से भर गया। सर अब तो जल्दी से मुंह मीठा करवा दें। डॉक्टर शीजा जोश में बोल गई, फिर जैसे कुछ याद आया हो और फ़ौरन रुकी। कोई बात नहीं डॉक्टर शीजा, फजल पूरे स्टाफ में मिठाई बांट दो। सारून ने मुस्कुराकर इसकी झिझक कम की और आहिस्ता के ऐसे आगे बढ़कर परीशा का हाथ थामा और इसे नरमी से उठाया और कहा, चले। हैदर खान, रबान खान और शामिर कमरे से निकल चुके थे। ज़ारून परीशा को आहिस्ता आहिस्ता लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। परीशा बार बार मुड़कर शीजा को देख रही थी जो दरवाजे पर खड़ी खामोशी से मुस्कुराकर उसे अलविदा कह रही थी। खान हवेली के बाहर शोर बरपा हुआ जबकि एक के बाद एक से आशीषों वाली चमचमाती गाड़ियां गेट के बाहर आ रुकी। गेट खोलो। बालाज खानजादा के ड्राइवर ने रोबदार आवाज़ में चौकीदार से कहा। चौकीदार एक लम्हे को सहम गया, फिर जल्दी से बोला, साहब से पूछे बगैर दरवाज़ा नहीं खोल सकता। और वह दौड़ता हुआ अंदर की तरफ लपका। हवेली के अंदर इस वक्त खवातीन लाउंज में थी। बारान अपने कमरे में किसी अहम मीटिंग में मसरूफ और ज़ारा किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। खान साहब, चौकीदार ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी, मगर बारान का कमरा साउंड प्रूफ था। आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंची। ज़रखान हवेली का वफादार पुराना मुलाजिम फ़ौरन वहां पहुंचा। शफीक क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? खान जी, कोई बालाज खानजादा आए हैं, दर्जनों लोगों के साथ। रोबदार आदमी लगते हैं। खान साहब को खबर कर दूं? ज़रखान के चेहरे पर भी तशवीश के आसार थे। इतने बरसों बाद उसने ऐसी आमदोरफ्त कम देखी थी। ज़रान खाने की तरफ शोर की आवाज़ गई तो ज़ुबिया खानम ने चौंक कर पूछा, साजदा ज़रा देखो तो क्या हंगामा है बा? साजदा तेज़ी से निकली और ज़रखान से जा मिली। क्या मामला है खान? कोई बालाज खान साथ आए हैं। बारान खान सख्ती से कह चुके हैं कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। अब बताओ क्या करें? ज़रखान ने लब भींचते कहा। हमें खुद बताना पड़ेगा। साजदा जल्दी से जनान खाने की तरफ लपकी। ज़रखान अपनी बीवी की फुर्ती देखकर रह गया। उधर बालाज खानजादा ने एक सर्द निगाह गेट पर डाली और बगैर किसी ताख़ीर के हुक्म दिया, अशर दरवाज़ा खुलाओ। अशर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर एक हवाई फायर किया और गेट खोल गया। बालाज खानजादा जैसे अंदर दाखिल हुआ, पूरी हवेली में जैसे ज़लज़ला आ गया और इसकी आमद में एक शहाना जलाल था और आंखों में वो गज़ब जो पहाड़ियों में पलने वाले मर्दों की पहचान होता है। खानम जी, साजदा हाँफती हुई सनान खाने में पहुंची। बाहर कोई बालाज खानजादा आए हैं। सन्नाटे में जैसे धमाका हुआ। ज़ारा जो हाथ में ट्रे लिए आ रही थी, उसके हाथ से शीशे की ट्रे छूटकर ज़मीन पर गिरी। तड़ाक की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। शाल कंधे से सिरक गई थी। वो गुमसुम दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन बालाज खानजादा पहले में ही हवेली में दाखिल हो चुका था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? सूबिया खानम की चीख बुलंद हुई। उनके साथ हिब्बा खानम और मीना खानम भी खड़ी हो गई। बालाज, लाला, सारा के लबों से मध्यम सी आवाज़ निकली। बालाज की नज़रें सारा पर जमी थी। पठानी फ्रॉक, चुटिया, हल्की कपकपाहट, ये वही सारा था। इसकी सारा। वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया। सब खवातीन दम बखूर रह गई। ज़ारा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बालाज ने उसकी कलाई अपने हाथ में लेते हुए ऐलान किया। फिजा में सनसनी से फैल गई। ज़रमीना ने यह मंजर देखा तो बर्क रफ्तारी से ऊपर की मंजिल की तरफ भागी। बारान के दरवाजे पर पहुंच के उसने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। बारान ने मीटिंग रोककर दरवाज़ा खोला। क्या हुआ ज़रमीने? मैं काम में था, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। ज़रमीने ने जो कुछ कहा वो सुनकर बारान खान की आंखों में जैसे भड़कते शोले आ गए। तुम कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। उसने अपनी शाल झटकी और कदमों में तूफान लिए नीचे की तरफ बढ़ा। नीचे का मंजर नाकाबिले यकीन था। सनान खाने के बीचों बीच अजनबी मर्द ज़ारा की कलाई थामे खड़ा था। बारान की आंखों में खून उतर आया। वो बेतहाशा गुस्से से आगे बढ़ा। बालाश की पुष्ट से आकर उसे जोरदार धक्का दिया। कौन है तू? और हौसला कैसे हुआ मेरी हवेली में घुसने का? इसकी धाड़ पूरी हवेली में गूंजी। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी ज़ारा को वनी में देने की? बालाज की गर्दार आवाज़ ने मुकाबिल को जवाब दिया। मेरी ज़ारा है वो,
میری منگیتر، اگر مطلع لینا تھا تو مرد بن کر لیتے، ایک عورت کو کیوں نشانہ بنایا؟ یہ سنتے ہی باران کی آنکھیں سارا پر پڑی جو لرزتی کھڑی تھی۔ خبردار اگر دوبارہ میری عورت کا نام دیا۔ باران نے بلاج کے چہرے پر پہلا مکہ رسید کیا، ایک کے بعد ایک بار، گویا اس کے غصے کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ وہ میری منگیتر ہے۔ بالاج بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ میری بیوی ہے۔ باران کی آواز اس سے دگنی بلند تھی اور ہاتھوں میں شدت دو چند۔ اب دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے، ایک جانب زارا کا بچپن، دوسری طرف اس کی حالیہ حقیقت۔ ملازمین کمرے کے باہر بے بس کھڑے تھے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ خواتین خوف سے چیخ اٹھیں، سارا ساکت کھڑی تھی، جیسے ہوش و حواس چھوڑ چکی ہو۔